ناظرین کوشر خبر نامہ ہے صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند طرف ہندوستان مالدیپ جاری تنازعہ حوالہ ون آمت زِ ہندوستان تو مالدیپس دوران ہمیشہ دوستانہ تعلقات رود مت ڈاکٹر فاروق اللہ سند طرف ون آمت زِ تمو وون زِ تمن پزِ کت بات کرت مسئلہ حل کرنچ کوشش کریں فاروق عبداللہ سند طرف جمس مز میڈیا نمائندن ستن کتن ہز باوت کرنا آمز دیکھیے میں کیونکہ مالدیو جانتا نہیں ہوں، میں کبھی گیا نہیں ہوں. ہندوستان ہر وقت مالدیو کی مدد میں گیا ہے. میں جانتا ہوں جب وہاں پہ وہ شیطان آئے تھے جن نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، تب کون گیا ان کو بچانے کے لیے؟ بھارت کی فوج گئی، اور جو ہی ان بدماشوں کو نکال دیا، بھارت کی فوج واپس آ گئی. یعنی کہ انہوں نے زمین پہ قبضہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے اپنا کام کر دیا، اب واپس جا رہے ہیں. آج جو یہ کنٹروورسی ہو رہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارت میں جو اب نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ہندو اور مسلمانوں میں، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا. میں مالدیو گیا نہیں ہوں. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارن منسٹری جو ہماری ہے وہی اس کا بتا سکتی ہے دیش کو کہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. چائنا کا دیکھیں چائنا کا انفلوئنس تو ہر جگہ بڑھ رہا ہے. چائنا کا انفلوئنس وہیں نہیں بڑھ رہا ہے، آپ کے نیپال میں بڑھ رہا ہے جو ہمارا پڑوسی ہے، پاکستان میں تو پہلے سے ہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی بڑھ رہا ہے. چائنا نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر بھارت کوشش کر رہا ہے کہ چائنا سے بات چیت سے معاملہ حل کیا جائے، اور یہ تبھی ہوگا جب وہ بھی اس کا رسپانس اچھا دیں. اور بھارت اور چین جو ہیں وہ دوستی میں جیسے پہلے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب پنچشیل بنا تھا نہرو کے وقت میں، اس میں چو ان لائی تھے جو ایک ستون تھے. مگر پھر جب وہ وار ہو گئی، وہ 60 کی 61 کی، اس نے پھر ہمارے دھاڑیں ڈال دی. مگر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دھاڑیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور چین اور ہندوستان پھر سے، جس طرح ہم میڈیکل کالج میں نعرے مارتے جب چو ان لا آتا تھا، ہندی چینی بھائی بھائی، کیا پھر سے وہ ماحول پیدا ہو جائے، اس بھائی بھائی کا معاملہ چلے اور ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. کشمیر ٹرانسپورٹ فیڈریشن طرف یدوے آز ہٹ اینڈ رن قونونس خلاف سٹیئرنگ چھوڑو ہڑتال کال دنس آمز تو شمالی کشیر مز ہڑتالوں کا خاص اثر وچھنا آمت یہ بارہمولہ کپوارہ تو دومین اضلاع اندر دوی دہس پبلک ٹرانسپورٹ غب رود یم کن لکن تہ کہیا مشکل ویترن پی. تمہ حوالہ ڈرائیورو طرف ون آمت ہٹ اینڈ رن قونون گژھِ واپس یون نن یُتھ تہند خدشات دور سپدن. کرنا کا رہنے والا ہوں، میں بھی ایک ڈرائیور ہوں. تو آج ہماری ہڑتال ہے کیونکہ چیئرمین صاحب نے کال دی تھی 2 دن ہڑتال کی، تو اس لیے آج ہم ہڑتال پہ ہیں. کیونکہ یہ جو کالا قانون سرکار نے ہماری لائی، یہ بالکل ہمیں منظور نہیں ہے. کیونکہ ہماری آلریڈی کم سے کم ہماری سیلری جو ہے وہ 5000 ہوتی ہے، اور 5000 میں ہم اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتے. تو کیسے ہم اتنا بڑا جو انیشیٹو سرکار نے لیا ہمارے لیے، ہم اس کو سکسیسفل کر سکتے ہیں. تو ہماری اپیل رہے گی، اور آج ہمارا ڈسٹرکٹ کپواڑہ پورا بند ہے، ہم ہڑتال پہ ہیں 2 دن کے لیے. اور ہماری سرکار سے اور ایل جی انتظامیہ سے بھی اپیل رہے گی کہ یہ قانون جو ہے اس کو واپس لیا جائے. راج پور محمد مظفر خان ناو سری نگر گھن یہ گاڑی کھانا ہڑتال پرابلم گئی حج صاحب واریاہ راجپور پر کت پہ راجپور پہ آئے أکس گاڑی مز مگر سیٹ گئی پھر واپس پیدل آئے تو کوٚر روڈ یور وٲتۍ یوت ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ گاڑی ضروٗری اوس سرینگر گژھُن ہسپتال. اہن حظ آ پریشان حظ ہسپتالس منٛز چھُ بٮ۪مار پرٛاران ییٚلہِ نہٕ توٚت ووتُے اِنسان. یہ پر شمالی کشیر ورمولس مز ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی طرف سرکارس خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمد. احتجاج میں شامل ڈرائیوروں طرف ون آمت زِ ہٹ اینڈ رن قونون نافذ کرن تمن ست سراسر ناانصافی یم کن تم آولنس مز ہن آمت. تو تمو وونمت زِ یہ قونون گژھِ واپس یون نن یُتھ تہند مشکل دور سپدن.
बोल रही है, हमारी सरकार बोल रही है कि 26 जनवरी के बाद ये लागू होगा, मगर हम इनको बोलते हैं कि अगर ये कानून चलता रहा हमारे इन गाड़ियों का क्या होने वाला है, फिर इन गाड़ियों का आग लगा दिए, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। ये सरासर नाइंसाफी है हम ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर से बोलता हूं कि एक हो जाओ, इस काले कानून के लिए सब एक हो जाओ, वरना हम क्या करेंगे। हमारी रोज यहाँ पे सरकार बोलती है कि इन नौजवानों को रोजगार होना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा रोजगार छीनती है, हम क्या करेंगे फिर। हमें यहाँ पे गाड़ियां चलाते हैं सारे लड़के, जो नौजवान गाड़ियां चलाते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपकी इस चैनल की वसादत से कि ये कानून सही नहीं है। अगर हिट एंड रन का हमें मतलब ये कत्ल मिलेगा तो ये तो एक नाइंसाफी वाली बात है। अभी तक कुछ नहीं, अभी तक उन्होंने बोला कि हमने फिलहाल ये उन्होंने रोक के रखा है। हम चाहते हैं जिस तरह इन्होंने कल भी एक फैसला लिया था, इसको हम यही चाहते हैं कि ये कल भी फैसला देकर एक नोटिफिकेशन बाहर निकाले कि भाई हमने एक कानून। ये जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन आमुत ज तिम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन कांग्रेस तंजीम हज हिमायत करान तो तिमो वन आज कुन तह हड़ताल हज कॉल दिन आमज। तिमो वन हिट एंड रन कानून वापस निन हवाल सरकार सत मुशावरात जारी तो उम्मीद यह कानून यह वापस निन युथ ड्राइवरन हंद मुश्किल दूर सपदन। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के दिए गए कॉल की हिमायत में आए थे गुज़श्ता दिनों, लेकिन जब उनकी हुकूमत हिंद के नुमाइंदों के साथ बात हुई थी, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उनके साथ हमारे नुमाइंदों की बात, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ बात हुई थी, जिसमें यह तय पाया गया था इस कानून को फिलहाल होल्ड पे रखा गया था। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, जिसकी रूह से यह कहा गया कि हम इसकी धारा 106(2) को तब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदों के साथ बात नहीं करेंगे। इस सिलसिले में कल की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी कि हमने अपने ड्राइवरों, अपने ऑनरू जो हमारे साथ वाबस्ता है ऑल जेंड के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, जो हमारा जम्मू डिवीजन भी, जिसके साथ हमारा जम्मू डिवीजन भी है, उनके साथ सलाह मशवरा करके हमने फैसला लिया था कि 8 और 9 को कोई हड़ताल नहीं होगी। उसमें मुतफिका तौर हमने ये फैसला लिया था। आज आप देखेंगे कि अभी मामूल के मुताबिक हमारी गाड़ियां हर रूट पे रवा दवा है, हमारी गाड़ियां चल रही है और हम इस काले कानून को हुकूमत हिंद पे ये वाजिह करना चाहते हैं कि इस कानून को फौरी तौर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आवाज जनूबी कश्मीर पुलवामस मज पार्टी कन्वेंशन सवाल एक तकरीब हिंदुस्तान करने यथ मज पार्टी लीडरों अलाव वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाल कथन दाल दिनाव तो वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी खतर चुकसान काम करें युत बाकी लुक ते पार्टी मज शामिल सपदन। पार्टी सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर सिंह तरफ तकरीब दौरान वन आमुत अपनी पार्टी दो खुदा मजबूत सपदान तो जम्मू कश्मीर मज यनवाजी सरकार अपनी पार्टी हंस सरकार। अत मौके पे अपनी पार्टी जल्द सदर गुलाम अहमद मीर, उमर जान तो बाकी जिम्मेदार ते मौजूद। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। देखिए हम तो डे फर्स्ट से चाहते हैं कि पंचायती नहीं, असेंबली, पार्लियामेंट सारे इलेक्शन हो जाए। हम जो ग्राउंड पर मुश्किलात देख रहे हैं लोगों के, उनसे पता चल रहा है कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत है या प्रेसिडेंट्स रूल है, ये लोगों के हित में नहीं है। जमहूरी निज़ाम कोई भी बनाए हुकूमत जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिंह तरफ आज कश्तवार सत ताल्लुक थवन वाजी
پیرا آرچر کھلٲڑۍ شیتل دیوی ارجن ایوارڈ ست نوازنہٕ آمٕژ. شیتل دیوی چھِ مُلکٕچ گۄڈٕنِچ تیٖر انداز خوتوٗن یُس جسمٲنی طور خاص چھِ. 16 ؤرِش شیتل دیوی سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ پٔتمہِ ؤرۍ چیٖنس منٛز منعقد کرنہٕ آمژٕ پیرا گیمزن منٛز 2 گولڈ میڈل حٲصِل تہِ کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ تیٖر اندٲزی منٛز بہتریٖن کارکردگی ہاونس پٮ۪ٹھ چھِ تِم آز ارجن ایوارڈ ست نوازنہٕ آمٕتۍ. یپٲرۍ چھِ تِہنٛدِ گرِ کشتوارس منٛز تہِ خوشی ہُنٛد ماحول وٕچھنہٕ یِوان. परिवार के सदस्य क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया में शीतल के चाचा जी हमारे साथ हैं. तो हमारी तरफ से भी आपको मुबारकबाद. तो आपने बचपन से शीतल को देखा है, क्या कुछ आपने देखा उसमें, क्या हिम्मत थी, कैसा उसके वो काम करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम उसको हाथ से करने थे वो अपने पाँव से करती. तो कैसे आपने उसको देखा बचपन से, वो कैसी बच्ची थी? ये जो शीतल देवी जो है, जिसने आज अर्जुन अवार्ड दिल्ली में दिया गया, सब गांव वाले खुश हैं और फख्र से सर ऊंचा है इनका. पूरे देश का नाम रोशन हुआ है, हमारे गांव का. ये जब पैदा हुई थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन हर कोई आता था देखने के लिए कि हम भी देखें कि सच में है, इसकी बाजू नहीं है. जब सुना, मतलब गांव वालों ने भी आए देखने के लिए कि सच में बाजू नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि माँ को तो थोड़ा फील होता ही है कि भाई जब बड़ी हो जाएगी तो फिर कैसे, मतलब अपना आप को कैसे संभालेगी. मैं तो खुद बकरियों के साथ या कहीं और होती हूँ, पापा कहीं काम पे जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है, तो खाना कैसे खाएगी या कुछ. जब ये थोड़ा थोड़ा अकल में आई लड़की, तो इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया. बोला मैं स्कूल जाऊंगी. माँ ने बोला तू स्कूल जाएगी, उधर गिरेगी तो कौन उठाएगा उधर. मतलब ये भी हकीकत है कि भाई ये तो माँ ही जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा, और जब स्कूल गई है बोलने नहीं मैं स्कूल जाऊंगी. फिर स्कूल गई, आस्ता आस्ता इसको अपने स्कूल में दोस्त मिले, फ्रेंड्स मिले इसको, और गई प्राइमरी स्कूल में. प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगी, लेकिन इसने लिखना शुरू किया पैर से ही. अब हाथ तो थे नहीं, पैर से ही लिखना शुरू किया. लिखते 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 तो ये 5th तक ये एक स्कूल में पढ़ी, जो प्राइमरी स्कूल है. उसके बाद मिडिल स्कूल में गई. मिडिल स्कूल में भी इसने 8th तक किया. फिर वहीं से इसकी वीडियो है वायरल हुई. किसी मास्टर ने, टीचरों ने, फ्रेंडों ने वायरल हुई इसकी वीडियो, और इसकी वीडियो कहीं आगे गई और आर्मी वाले आए. उस ये 11 RR जो बनारकोट मुगल मैदान में जो 11 RR है, वो कहीं गेस्ट पे थी. इस लड़की को देखा उन लोगों ने, इसकी बाजू नहीं है. तो फिर दोबारा उन लोगों ने अपने ऑफिसर को बताया, जो कि कर्नल शेषपाल है. उसने अपने ऑफिसर को बताया, बोला ऐसे ऐसे हमने कहीं गांव में एक लड़की देखी थी ऐसे, जिसको हाथ नहीं है, लेकिन वो स्कूल में जाती है. लेकिन अगले दिन ही फिर वो दोबारा आए, ऑफिसर आए चेक करने के लिए कि कहाँ रहती है ये वो. उन लोगों ने जांच की. जांच पड़ताल करने के बाद फिर इस लड़की को लिखना शुरू किया. उसकी वीडियो बनाई, वायरल हुई मीडिया के जरिए, फायर मीडिया के जरिए. और बाद में उसी ने ही उसको आगे लिया कि इसको हम कुछ मदद करेंगे, पढ़ाई की तरफ से कुछ भी होगी मदद तो हम उसमें मदद करेंगे, किताबों में या कहीं भी. तो उन लोगों ने हेल्प की. हेल्प करने के बाद इसको लिया, बोला इसको बेंगलोर लेंगे, वहाँ पर इसकी बाजू लगवाएंगे. ये था अनुपम खेर इनके कांटेक्ट में, एनजीओ के थ्रू. तो इसको लिया बेंगलोर. वहाँ पर इसको प्रीति मैडम मिली. तो उससे बोला कि भाई इसको अगर कुछ आपके थ्रू अगर कुछ मदद हो सकती है तो आप देखो, ऐसे ऐसे लड़की है जिसके बाजू नहीं है. फिर उसने वहाँ पर जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, बाजू लगवाई गई. फिर इसको खुद ही मतलब अजीब सी लगने लगी बाजू, और भारी भी लगने लगी. बोला मैं पहनूंगी नहीं, मेरे ऐसे ही ठीक है. तो इसने पहनना शुरू किया, और पहने पहले तो फिर निकाल दिए. फिर उसने मैडम ने बोला कि अगर हम कुछ तुझे गेम खिलाएंगे तो खेलोगी. उसने बोला चलो खेलेंगे, अगर कर पाऊंगी तो खेल लूँगी. फिर उसने खेलना स्टार्ट कर दिया. फिर उन लोगों ने कुलदीप वेदवान जी और अभिलाषा चौधरी, जिसने जो कोच हैं, जिन लोगों ने इसको सिखाया,
लेकिन एक बात बोलूँगा कि ये जो लिखती थी, पैर से लिखती थी सब कुछ, ये काम अपने मतलब जैसे जैसे बड़ी होती गई ये सारा काम अपने पैर से ही करती थी। मतलब जो जनूबी कशीर बूट कॉलोनी खनबल अनंतनागस मज नारकिस अकिस खौफनाक वारदातस मज 8 रिहायशी मकान खाकस्तर सपदमत। वन आज सुबह करीबन 2 बजे सबुद इलाकस मज अचानक नार जहर यम वुचनी अंद पक बाकी मकान ते पनिस जदस मज नी। वाक पता तो मुकामी लुको फायर एमरजेंसी एहलकारों तरफ नारस पर काबू प्रावना आव तहम तोताम सारी मकान सूरस मज तब्दील सपदमत। तो मुतसरीनों तरफ इंतजामिया मंग कर आम तिमन गस मुआवजा फराम कर युन युथ तिहुंद दोह गुजारुन सपदन मुश्किल। गो लगभग 3:30 बजे गो स्टार्ट ना गो कंट्रोल नारस हसा गई माल तम हसा 7-8 मकान नसा रूद गवर्नमेंट अपील करान कि सबिल कर नसा रूद नाल ती नाल ती द्राम नश कहें तमो कर नाल बचन लेबल तलाशन पाई कल चौक नसा रूद कड़ाव क्या कमल चन प्याल त्रेश चन मदद मदद खुदाई सिंह मदद 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 खुदाई सिंह मदद 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 अचुम चोर चोरन बायत तो दयाल अचुम चोरन अचन जेवर लुकस कार तुम कलस पे क्या कर तू खुद का क्या अगो किताब द्रायम नशर किताब आधार कार्ड द्राम नशर चोन द्रायम नशर तीन द्रायम यह DC अनंतनाग डॉक्टर फखरुद्दीन हामिद सिंह तरफ जाय मौकूक दौर कर आमुत या दौरान तमो तत नार वारदात जायज़ हेत। अत मौके पे तमो मुतसरीन सत मुलाकात कोर तमो यकीन दहनी कर्म LG इंतजामिया तरफ मुतसरीन भरपूर मदद फराम करना। तो तमो लूकन अपील कर्म तम गसन वंद कालस दौरान हीटिंग आलात इस्तेमाल करनस मज एहतियात वर्तावन युथ दोबार यथ वाक़ यन पेश। आज सुबह करीबन 3-3:45 बजे यहाँ पे आग की एक वारदात हुई थी जिसमें करीबन 8-9 रिहायशी घर खाकस्तर हुए हैं। एक बहुत दिल को दुख करने वाला वाक़ा है। मैंने यहाँ पे दौरा किया और LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इमदाद अभी इमीडिएट में देनी होगी और खासकर जो रिहेबिलिटेशन में इनको इमदाद देनी होगी उसका एक जायजा लिया। और मैंने यहाँ के जितने भी अपराध है कुंबे हैं उनको यकीन दहानी दी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी मुआवजे की और रिहेबिलिटेशन की है उसमें हम जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये पूरे अनंतनाग के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप थोड़ा सा ड्राई स्पेल चल रहा है और दूसरा विंटर में आग के वारदातों में कुछ थोड़ी सी इजाफा हो जाता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एहतियात हम बरतें। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी सिंह तरफ बूट कॉलोनी खनबल अनंतनाग दौर कर आमुत या दौरान तमो तत मुतसरीन सत यकजहती हुंद इजहार कोर। तो तमो इंतजामिया पे जोर दितमुत मुतसरीन गस जल्दी मुआवजा फराम कर युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। देखो रात के 3:30 बजे ये वाक़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि 8 मकान पूरी तरह से जल गए हैं, खाकस्तर हो गया, पूरा नुकसान हो गया इनको। बाकी जो जितने भी घर है उनका अंदर का जो भी सामान है वो भी। मुझे मेरी गुजारिश है, डीसी साहब भी यहाँ पे ही है, मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे इनको जो अंदर जो पूरे मकान जल गए हैं, जो पूरा नुकसान हो गया है, तो इनको कम से कम 50-50 लाख का इमीडिएटली वहाँ पे मुआवजा मिलना चाहिए। और जो बाकी लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए जो अंदर का, क्योंकि आज के ज़माने में आज मौसम सरमा है, आज के ज़माने में अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल
मुश्किल है, मुश्किल सरमा है, और इन हालात में ये बेचारे जाएंगे कहाँ पे? अगर खुदा ना खास्ता अभी भी भरोसा नहीं, कल भी परसों भी, या अभी 2 महीने हैं बर्फबारी हो रही है, मतलब कल को मौसम खराब हो सकता है, तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? इसीलिए विद इन मतलब टाइम 7 दिन के अंदर अंदर इनको मुआवजा मिलना चाहिए, कि ताकि ये भी बेचारे अभी से ही कुछ ना कुछ अपने रहने के लिए जगह जो भी है इनको नुकसान हुआ तो वो पूरा करेंगे। वस्ती कशीर अलमदार कॉलोनी बड़गाम रोजने वाले लोगों तरफ महकमा PDDS खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी करना आमज। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुद यह इलाक पतमो 2 रेतों पे बिजली नश महरूम यमकिन लुक आवलनस मज हनामित तो तमो अमे मुतलका जिम्मेदारन तो जिला इंतजामियस अपील कर अत मामलस कुन जोन युन दिन तो बिजली बहाल करनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदान। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमसेट बडगाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद एडब्ल्यू बडगाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये 2 रेतों पे ट्रांसफार्मर वनकस खराब अच्छन पावर 2 रेतों पे वुचन वन अके निश 7 मीटर दूर अके वन कन हाई सेकेंडरी निश बसान काल सुबह काल 40 लट गो डैमेज ट्रांसफार्मर कह पर्सन वो बोजन वोल कहन बोजन वोल अंदर अफसरस हु वन अत लोड शेडिंग अत रिवर्स कपर तन पावर लान में तुम क्या वुचान अत पान लान दिन नजर वो तुल तम लान दूर कह आलसमा स्कूल तथ कोर ये ब्या मोहम्मद इसाक चलान तमिस पावर सह दूर तमिस तुल तम पे दर ट्रांसफार्म कहें। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन से 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।